بھائی مولوی صاحب، جب میں نے آپ کی کتاب سے دکھا چکا ہوں کہ تفسیر قرطبی میں نہیں، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ عائشہ نے کہا کہ چوہا کھایا کرو. نہیں کہا گیا ایسا ہے نا. سند صحیح ثابت کریں نا. اب سند پیش کریں. آپ پیچھے کہہ چکے ہیں نا کہ فلاں کے لیث بن سلیم کا آپ سند پیش کریں، اسی جگہ کے لیے سند پیش کریں. آپ اگر ایسا بھی پیش کریں. اوکے میرے عزیز سنو، یہ کتاب المجموع فی شرح المحدث تالیف یحیی بن شرح تفسیر قرطبی. تفسیر یا نہیں ہوتی میری کتاب سے میری مرضی جس کتاب سے کہوں بھائی. اس پر جھوٹ بولا ہے نا، یا مان لے میں نے جھوٹ بولا، پھر اس سے دکھا دیں. میرے جھوٹ کے جملے کیا تھے آپ بتاؤ کہ میں نے کیا جھوٹ. پھنس گیا نا، پھنس گیا تو یہ صاف ہو گئی یار. او بھائی آپ نے بولا کہ ایسا کیا بولا ہے؟ آپ نے بولا تھا بھول جاتے ہیں نا. آپ نے بولا تھا، آپ نے تفسیر قرطبی اٹھائی، میں نے اسی وقت آپ کو بولا تھا کہ آپ بتا دیں. آپ نے کہا اس میں حدیث ہے حضرت عائشہ سے. میں نے کہا اس کو سند صحیح کے ساتھ ثابت کریں. آپ نے وہاں سے پڑھ دیا. میں نے آپ کو پھر بولا، میں نے آپ کو سنا میری بات، میں نے آپ کو اس وقت بھی بولا تھا. ریکارڈنگ سن لیں. آپ نے کہا تھا کہ میں آگے پیش کرتا ہوں اس کا ریفرنس، لیکن آپ نے نہیں کیا. اس کی سند پیش، اس کی سند وہاں دکھائیں گے. جہاں بولا میں نے جھوٹ بولا، اگر کسی آپ کی کتاب میں لکھا ہے، ابھی آپ خاموش ہو جاؤ گے، میں بات کروں. نہیں خاموش ہو جاؤ گے بس چٹھی صاحب، خاموش ہو جاؤ گے. اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عائشہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس نے کہا کہ چوہا کھایا کرو، ٹھیک ہے نا، تو میں نے وہ حدیث آپ کو دکھایا ہے، تو اس میں جھوٹ، میرے جھوٹ کیا ہے آپ سمجھا. اس میں میرے جھوٹ کیا ہے؟ اگر اس کی سند صحیح ہے تو اس کو آپ لوگوں میں نے ادعا کیا وہ سند صحیح ہے، یا اس کی سند، اگر اس کی سند نہیں میں نے ادعا کیا اس کی سند ہے. آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہے اور آپ کو پتا ہے الاخبار بالجزم يدل على التصحيح. سب لوگ جانتے ہیں کہ محدثین کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی محدث سند نہیں لاتا بلکہ وہ بالجزم خبر دیتا ہے، کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. وہ نہیں کہتا روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالجزم کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ يدل على التصحيح، یہ تصحیح کے اقسام میں سے یہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ اس کو کتاب بھی دکھایا کہ اس نے کہا ہے کہ چوہا کھایا کرو. اگر اب تم خاموش رہو تو میں مزید دکھاؤں کہ آپ کے مذہب میں کیا خبائث کھائے جاتے ہیں. اسی کا جواب آپ نے دینا ہے. اس کے بعد اور میں اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو میں جواب دوں گا، اگر تم خاموش نہیں ہوتے تو میں جواب دوں گا. میری بات نہ کاٹنا، میری بات نہ کاٹنا عزیزو. یہ کتاب موضوع چھٹیں گے پھر کاٹوں گا، موضوع چھٹیں گے پھر کاٹوں گا. پہلے قرطبی کھولیں دکھائیں سچا ہونا. پلیز خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ تاکہ میں آپ کو دکھاؤں. عزیزو یہ کتاب ہے المجموع فی شرح المحدث. تم نہیں بات کرنے دیتے، تم خود بات کرو بھائی. دیکھیں آپ نے تفسیر قرطبی، دیکھو بھائی میں آپ لوگوں کے مذہب میں کرنے دیں، بات کرنے دیں نا، کرنے دیں. میں کتنی دفعہ یہ جملہ جو ہے دہرا چکا ہوں کہ آپ نے بولا تھا اس میں حدیث ہے، اور حدیث ہمارے یہاں بسند صحیح ہو تو تصریح ہوتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے. ابھی جب اس کے اختلاف کی بات ہو رہی تھی تو آپ کہتے ہیں اس کی سند دکھاؤ. آپ اگر ایسا کیوں نہیں سند دکھاتے؟ پہلے اس کا جواب دو، پہلے اس کا تو پھر اس کا دوں گا. اوکے تم خاموش ہو جاؤ گے تو دوں گا نا، تم خاموش ہوتے ہی نہیں ہیں. میں ترجمہ کتاب کھولتا ہوں المجموع فی شرح المحدث، تم کھولو تفسیر قرطبی کھولو نا، پھر خاموش پھر خاموش ہو جاؤ گے. دیکھیں عزیزو عربی زبان میں چوہوں کے صرف ایک نام نہیں ہوتا. اور پلیز او بھائی میرے مرضی میں کس کتاب سے ثابت کروں؟ یہ کوئی ضروری نہیں میں کی کتاب سے ثابت کروں. اگر کتاب آپ لوگوں کی ہے، اسانید آپ کی ہے، تو وہ میری مرضی میں کس کتاب سے ثابت کروں؟ تم کیوں کہتے صرف تفسیر قرطبی دکھاؤ؟ یہ کوئی قاعدہ ہے؟ باقی محدثین مفسرین وہ سب جھوٹے ہیں، بات نہیں کرنے دے رہا. بھائی تم بات کرو. میں کیوں جھوٹ بولا؟ کتاب میں موجود ہے. اوکے آپ سے 2 گھنٹے بات ہو گئی بھائی، 2 گھنٹے سے زیادہ، 2 گھنٹے آپ سے زیادہ بات ہو گئی بھائی صاحب. آپ مجھے نہیں بات کرنے دے رہے. کتے کا سالن، وسائل الشیعہ میں جو کتے کا سالن، وسائل الشیعہ میں جو کتے کا سالن اور چوہے کا، پڑھو حدیث پڑھو، ہم جواب دیں گے بھائی. حدیث پڑھو ہم جواب دیں گے. بسم اللہ. کتے کا سالن کہاں؟ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، دکھاؤ. بالکل، جو آپ نے جھوٹ بولا حضرت عائشہ کے متعلق تو آپ پہ لعنت تو برس رہی ہے. پھر سنو لوگوں، جو یہ لوگ ان کے مذہب میں جو خبائث کہے جاتے ہیں، آپ اسی یوٹیوب چینل پہ میری ایک تقریر ہے مذہب عمریہ کے متعلق کچھ مزے کی باتیں. میرے جملے سنو. وہاں پہ لکھا ہے کہ مذہب عمریہ میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں مزے کی کچھ باتیں، میں نے اس کا عنوان رکھا ہے مزے کی کچھ باتیں. اس میں بہت کچھ ہے کہ مثلا یہ لوگ کیسے کتا کھانا ان کے نزدیک، بہت ساری چیزیں، چوہے کا نا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ چپکلی کا نا. روایت پڑھو. بسم اللہ بسم اللہ. روایت پڑھو. شیعہ لوگ جو ہے کتا کھاتے ہیں. بسم اللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ لوگ کتا کھاتے ہو سکتے نہ کھاتے ہوں، لیکن روایت میں یہ بات ہے. آپ نے کہا کہ کتے اور چوہے کا سالن کھاتے ہیں. آپ خاموش ہو جانا، اب خاموش ہو جانا. آپ نے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ بسم اللہ کرو. روایت پڑھو. کتے جیسا جانور ہے، یہ کتے جیسا جانور نہیں، یہ کتے کی بات ہو رہی ہے، قلب کی بات ہو رہی ہے، کتے کی بات ہو رہی ہے. سنیں نا، سنیں گے تو میں پڑھوں گا نا. جی جی. کہ کتا یا چوہا جو ہے وہ سالن کے اندر گر جائے تو اس کو نکال لے اور وہ جو مس شدہ سالن ہے وہ کھا لے. پڑھوں سنیں. قال سال کو ابا عبداللہ علیہ السلام کھائے تو مزہ آ گیا ہے.
नहीं मजाक है। पढ़ो हदीस, पढ़ो, मैं जवाब दूंगा। वैसे खोता कढ़ाई खाई थी? हदीस पढ़ो, मैं जवाब दे दूंगा। कहता जो आपके नजदीक हलाल था वो खाई थी खोता कढ़ाई? हदीस पढ़ो, मैं जवाब दूंगा। हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। बिस्मिल्लाह। तो खामोश हो गया ना, हमसे कि खुश हो जाएंगे तो फिर मैं किससे पढ़ूंगा, मतलब पहले लेने लग जाए। काला साल तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अल फारत वल कल्ब यकलु फी समन वज़ैत सुम्मा यखरुजु मिनहु हय्यन क़ाल ला बासा बिकले। ये देखें, कहते हैं कि हजरत इमाम जाफर से जो है वो पूछा गया कि चूहा और कुत्ता जो है वो सालन में गिर जाए तो उन्होंने कहा कि उसको निकाल लें और सालन आ जाए। सालन नहीं है, सगन किसको बोलते हैं? घी को बोलते हैं। सालन नहीं, कम घी को बोलते हैं। उसको क्या करें? उसको क्या करें भाई साहब? हुक्म मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में हदीस लेकर आता हूँ जो आप हदीस पढ़ रहे हैं ना। अब आप खामोश हो, मैं हदीस पढ़ता हूँ। अब देखें कि ये लोग कितने झूठे हैं। आप जो हजरत ऐशा के ऊपर झूठ बोला, वो आपने जो कहा था कि गद्दा उस आले सुन्नत के नजदीक हलाल है, बुखारी में लिखा है हराम है, हदीस बताओ। अभी गद्दे के मुताबिक बात करते हैं, मैं हदीस पढ़ूं आपके मुतालिक। फिर भाई साहब आप तो कोई बुखारी में 5527 है, नबी अलैहिस्सलाम से कहा हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूम अल-हुमर अहलिया। देखो अभी चुप करो, अभी तुम्हारे पास कुत्ते वाली भी कोई रिवायत है वो भी पढ़ो। तुमने चूहे वाली तो पढ़ी, कुत्ते वाली। कुत्ते का इसी में जिक्र है ना, इसी में जिक्र है कुत्ते का। अच्छा, क्या रिवायत? दोबारा पढ़ो, दोबारा रिवायत पढ़ो, रिवायत दोबारा पढ़ो ताकि मैं वो हदीस बोल दूं। काल सअल तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अनिल फारत वल कल्ब, यानी कुत्ता और चूहा दोनों के बारे में ये बात पूछी जा रही है। यकाउ फी समन वज़ैत सुम्मा यखरुजु मिनहु हय्यन क़ाल ला बासा बिकले। अक्ली ही पढ़ना है। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। अब अब्दुल्लाह कुत्ते का है इसमें जिक्र? जी है बिल्कुल है। इसमें लिखा है कि वो गिर जाए तो उसको जो है अंडेल दे या खा जाए, क्या करना चाहिए? तो चूहा गिर जाए तो खाना चाहिए वो खाना, या गिरा देना चाहिए खाने की चीज या पीने की चीज है? मैं भी आपको दिखा देता हूँ भाई, हदीस में निकाल के दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि आप कितने ख्यालत कर रहे हैं इस हदीस में। आपने जितने अमानतदार हैं जो हजरत आयशा के मुतालिक आपने झूठ बोला है वो भी सबको पता लग गया। ये भी पता है आपको? आपने ये बोला कि अहले सुन्नत के यहाँ बुखारी में गद्दा जो है हलाल है। तुम पढ़ो, मैंने जो इबारत पढ़ी है ना अल कुतुबी में, जो मैंने इबारत पढ़ी तुम सही पढ़ो। मैंने क्या इबारत गलत पढ़ी है? तुम पढ़ने तो देते नहीं, मैं किताब खोलता हूँ कहता नहीं सनद नहीं है, सनद नहीं है, सनद ही नहीं है, सनद बात है। तुम चुप करो ताकि मैं सनद साबित करूँ ना। तुम चुप करो, होते नहीं है। सिर्फ कुर्तुबी निकालो, कुर्तुबी निकालो। तो आपने उस वक्त क्यों कुर्तुबी उठाई? मैंने आपको उस वक्त बोला था तो आप उठा देना। अब मैं आपका हदीस दिखा देता हूँ। मैं अब एक तुम चुप करो, मैं ताकि हदीस में आपको दिखा दूं। मैं वसाइल शिया भी लेकर आता हूँ। वसाइल शिया में कौन सी मुजल्लद है? वसाइल शिया में जिल्द नंबर 1 है। अच्छा, मैं वसाइल शिया भी लेकर आता हूँ और काफी तो मेरे पास है। वसाइल शिया दूसरे कमरे में, आप इंतजार करें, मैं वसाइल शिया लेकर आता हूँ। एक मिनट, वसाइल शिया लेकर आता हूँ। देखो मुहतरम नाज़रीन, मज़हब शिया में यह है कि अगर कोई नजिस चीज मसलन कुत्ता है, अगर वो किसी तेल को या किसी ऐसी चीज को छूता है जो वो माया है, तो उससे आप इस्तेफादा नहीं कर सकते, उसको नहीं खा सकते, उसको आपको मसलन लेकिन खा नहीं सकते, लेकिन उसको दूसरे कामों में इस्तेफादा कर सकते हैं। तेल को आप चिराग में डाल दें, पुराने जमाने में चिराग जो जलते थे वो तेल से चलता था, तो आप उसको तेल में इस तरह इस्तेफादा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चूहा जिंदा है, तेल के अंदर चला जाता है और तेल से निकल जाता है, चूहा मरा नहीं है, तो वो उससे नजिस नहीं होता, वो उससे नजिस नहीं होता, तो उस तेल को आप इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन अगर चूहा तेल के अंदर जाता है, तेल का मसलन आपके पास वो माया तेल है, एक तो भाई प्लीज मैं हदीस दिखाऊंगा ना, मैं पहले हुक्म बताता हूं फिर मैं हदीस पढ़ूंगा, हदीस पढ़ूंगा। तो अगर वो माये के अंदर चला जाता है और फिर वो निकल जाता है, तो आप उस तेल को इस्तेफादा कर सकते हो, उसको खा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उसमें मर जाता है तो उस तेल को आप क्या कर सकते हो? उस तेल को आपको उसको नहीं खा सकते अगर अंदर उसके अंदर मर गया, क्योंकि उसका चूहा, कुत्ता भी यही है। कुत्ता टच भी करे ना तो उसको आप नहीं खा सकते। कुत्ता जो है वो टच भी करे, उस तेल को आप नहीं खा सकते, दूसरी चीजों में इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन अगर जामिद है तेल, अगर सॉलिड है तेल, मसलन कोई घी का तेल है, घी मसलन जो हिस्सा वो जामिद है उसको आपको पहनना, उसका जहां पे कुत्ते का हाथ लगा, मसलन आपके पास फर्ज करें वो घी का एक बर्तन है, घी सख्त है, तो उसमें कुत्ते ने ऊपर वाले हिस्से पे हाथ लगाया, तो ऊपर वाला हिस्सा आपको फेंकना होगा, या मसलन उसको जलाने के काम लेके लेंगे, दूसरे कामों में ले लेंगे, खा नहीं सकते। ये कह रहे थे शुरू में, देखें झूठे शख्स का, इसको शर्म भी नहीं है, हंस रहा है, कह रहा था कि शिया जो कुत्ता खाते हैं, खाने का लिखा हुआ है, भाई सुन लो, सुन लो भाई, हदीस पढ़ने तेल का बोला है, झूठ बोला, मेरे बारे में क्यों कहा मैंने झूठ बोला? क्यों झूठ बोलते हो तुम? झूठ बोल रहे हो ना। और भाई सुन लो, मैं हदीस दिखाऊंगा भी, मैं हदीस दिखाऊंगा भी। तुम चुप करो ताकि मैं पढ़ूं, तुम चुप करो ताकि मैं पढ़ूं, तुम चुप तो अपनी हदीस तो पढ़ने नहीं देते। आप मौलवी साहब, आपकी तबीयत बहुत गर्म है, ना मुझे बात करने देते हैं, ना अपनी किताब मुझे अपना किताब पढ़ने देते हैं। आपके साथ 2 घंटे बात भी हो चुकी है, अभी आपसे खुदा हाफिज़ आपसे, आप चले जाएं। अगर आप हमारे नहीं दूसरों का भी हक है ना, रिवायत अभी लोग देखेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद पढ़ूंगा।
आपके साथ गुफ्तगू नामुमकिन है। आपके खुदा हाफिज, आपका टाइम खत्म हो चुका है। अभी 2-3 घंटे से बात हो चुकी है भाई, काफी है। आपने रिवायत पढ़ी चूहे, ये चूहे की और कुत्ते वाली जो मेरे सामने पड़े, इसमें खाने की बात है या गिराने की बात है? मैं दिखा दूंगा, मैं सब रिवायत दिखाऊंगा, एक रिवायत नहीं, रिवायत मुझे नहीं पढ़ने। अच्छा ओके, खामोश खामोश, मैं आ जाता हूँ, खामोश। मैं आप इधर रहे, खामोश। जिस हदीस की वो बात कर रहे हैं मेरे मुहतरम नाज़रीन, वो किताब वसाइल शिया में है। किताब वसाइल शिया में, वसाइल शिया में किस सफ़े पर है? नंबर 24 में, जिल्द नंबर 1 लाया हूँ। मुझे माज़रत है, मैं जिल्द नंबर 24 लेकर आता हूँ, ये मुझसे गलती हो। बल्कि PDF खोलते हैं, कोई बात, PDF खोलते हैं, PDF खोलते हैं। मौलवी साहब अभी होल्ड में, उनको लेकर आते हैं। जब मैंने हदीस पढ़ ली तो फिर उनको लेकर, क्योंकि वो पढ़ने नहीं दे रहे। वसाइल शिया जिल्द नंबर 24। मेरे मुहतरम नाज़रीन, ये किताब वसाइल शिया इला तहसील मसाइल शरिया शेखना अल-हुर्र रहमहुल्लाह, जिल्द नंबर 24। यहाँ पर मेरे मुहतरम नाज़रीन आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 198 में, 198 में, सफ़ा नंबर 197 में। बाबुल फ़ारत इज़ा वक़अत फ़ी माइन औ जामिअत व ख़रज हय्यतन लम यहरुम अक्लुहु। अगर चूहा किसी माये में गिर जाए, मसलन तेल या घी में गिर जाए, और वो जिंदा है और जिंदा ही निकल जाए, तो उससे वो तेल नजिस नहीं होता। उस तेल को आप खाना चाहें तो खा सकते हैं उस तेल, ठीक है ना। अब गाँव में रहते हैं, गाँव में चूहे होते हैं, मसलन चूहा आके वो तेल के बर्तन में चला गया, अब उसको फेंकना जरूरी नहीं है। अब चूहा बशर्ते के निकल जाए, अगर चूहा मर गया तो वो नजिस हो जाता है। अच्छा, पहली जो हदीस है उसमें यह सअलतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम बली अनिल फ़अरति वल कल्बी, यही जो हदीस इन्होंने पढ़ा है। मैंने पूछा कि चूहा या कुत्ता यक़अउ फ़ी अस्समनी वज़्ज़ैति सुम्मा यख़रुजु मिन्हु हय्यन, मैंने पूछा कि कुत्ता या चूहा तेल में गिर जाता है, तेल में गिर जाता है और फिर वो जिंदा निकल जाता है। क़ाल ला बअस बिअक्ली, फरमाया कि ये इसको खाने में कोई हरज नहीं। ये हदीस जो है एक शाज़ हदीस लेकर आए हैं, ये शाज़ हदीस है, और जिस शख्स ने इसको नकल किया है रवाहु शेख बिस्नाद अन हुसैन बिन सईद अन अली बिन नअमान इल्ला अन्नहु अस्क़त लफ़्ज़ल कल्ब। शेख ने जो ये हदीस नकल किया है उसमें लफ्ज़ कल्ब नहीं है, बाज़ नुस्खों में लफ्ज़ कल्ब है, अक्सर नुस्खों में लफ्ज़ कल्ब नहीं है, ठीक है ना। शेख ने जो नकल किया है शेख तुसी रहमतुल्लाह अलैह, उसमें लफ्ज़ कल्ब नहीं, बाज़ नुस्खों में लफ्ज़ कल्ब है। जो कल्ब अगर गिर जाए तेल में और वो निकल जाए तो उसको आप नहीं खा सकते। अक्सर रिवायात में यही है। इस रिवायत में सिर्फ एक ही नुस्खे में कल्ब का जिक्र है, क्योंकि कल्ब चाहे जिंदा हो, कुत्ता जिंदा हो या मुर्दा हो, तेल में अगर तेल को टच करता है तो अगर वो तेल माया है तो फिर आप उसको खा नहीं सकते, दूसरे कालमों में इस्तेमाल कर सकते। लेकिन चूहा जो है अगर वो मर जाए, उसका मुर्दा तेल में गिर जाए जो माया है, तो उसको आप इस्तेफादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मरा हुआ, या वो गिर के मर जाता है फिर भी आप इस्तेफादा नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। लेकिन दूसरे काम से चिराग जलाना उसमें कर सकते। लेकिन अगर चूहा जिंदा निकल जाता है, जिंदा आता है, तेल के अंदर जाता है, फिर निकल जाता है, तो फिर उसको फेंकने की जरूरत नहीं, उसको खा भी सकते हैं। अच्छा, हुक्मुल कल्ब महमूलन अला तक़िया अवल अस्सबअ कमा मर्र फी अस्सैद। तो ये जो कल्ब का यहाँ पे जिक्र है, या तो ये तक़िया है या बाज़ नुस्खों में नहीं है, या ये है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जो मसलन ऐसे जो जिसको लोग कुत्ता कहते हैं लेकिन वो शिकारी कुत्ता होता है, शायद उसका बात हो रही हो। अच्छा, उन्होंने कहा, मुसन्निफ ने कहा, सअलतुहु अनिल फ़अरति वल कल्बि इज़ा अकला मिनल ख़ुब्ज़ वश्शबी यहुल्लु अक्लुहु। मैंने पूछा कि चूहा और कुत्ता अगर रोटी या मिस्ल रोटी, मसलन सालन है, रोटी है, कबाब है, वो उससे चूहा खा लेता है या कुत्ता उसमें से खा लेता है, हम उसको खा सकते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया युतरहु मिनहुमा अकल व यहुल्लुल बाकी, फरमाया कि जिस मकाम पे उनका मुंह लगा है, कुत्ते का मुंह लगा है या चूहे का मुंह लगा है, वो फेंक दो, बाकी खा लो। मसलन एक रोटी है, एक हिस्से आगे वाले हिस्से से चूहे ने खा लिया, खाना वाजिब नहीं है, लेकिन एक शख्स फकीर है, गरीब है, तो उसके लिए वो हिस्सा जिसमें कुत्ते ने या चूहे ने खाया है उसको फेंक दो, बाकी उसमें से खा सकते हैं। वसअलतु अनिल फ़अरति व कल्बिन शरबा मिन ज़ैतिन औ समनिन क़ाल इन कान जुर्रतन औ नहवहा फला ताकुलहु वलाकिन यंतफ़अु बिही लिसिराज व नहवी व इन कान लहु अक्तर मिन ज़ालिका फला बअस बिअक्लिही। मैंने पूछा कि अगर एक बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें तेल है या कुत्ता आके उसमें से खा जाता है या चूहा उसमें से आके खा जाता है, तो हम क्या करें? तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर वो एक मटका है, कम मिकदार है, मटके वाली मिकदार है, तो उसमें से आप नहीं खा सकते। वो चूहे ने उससे खाया है या कुत्ते ने खाया है, उससे नहीं खा सकते उसको, लेकिन दूसरे कामों में इस्तेफादा करें। दूसरे काम कैसे हैं? मसलन उसको जलाने का काम ले लें, उसको चिरागों वगैरह में काम ले लें। व इन कान अक्सर फला बअस बिअक्लिही, लेकिन अगर बहुत ही बड़ा बर्तन है, मसलन एक बहुत बड़ा वो तेल का मसलन खजाना है या घी का बहुत बड़ा खजाना है, तो उसको खा सकते हैं उसमें। इल्ला अन कान साहिबुहु मुसिरन यहतमिलु बिहरिक़िही, मगर ये कि उसका साहिब, मगर उसका मालिक अगर बहुत अमीर आदमी है, वो उसको पसंद नहीं तो उसको फेंकना चाहिए, वो फेंक सकता है। तो समझ आई बात आपको? तो आप कह रहे थे कि चूहे का सालन और कुत्ते का सालन खाते हैं, ये सालन की बात नहीं हो रही, आप समन का मकसद और ज़ैद का मकसद नहीं समझते, घी और तेल की बात हो रही। घी और तेल को अगर टच करें तो उसका हुक्म की बात हो रही। अब बात करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब आप झूठे हैं या नहीं? आप कह रहे थे कि शिया जो है कुत्ते का सालन खाते हैं, आपने यही खाते नहीं खाते? तो इसमें लिखा हुआ है, सालन कहाँ है? सालन का जिक्र ही नहीं है, ये तेल का बर्तन है और घी का बर्तन है, उसको खाने का लिखा है नहीं लिखा। अगर उस तेल को टच करे उसकी बात हो रही है, वो भी शाज़ रिवायत है, वो भी शाज़ रिवायत है। आप तो सालन का कह रहे थे ना, शिया जो है सालन खाते हैं कुत्ते का। इसको कुलैनी ने भी नकल किया, मुझे पता है कुलैनी ने भी नकल किया है, कुलैनी
ने भी नकल किया। तो आप कहते हैं तो उसमें पुरानी क्या? की बातें सही है, आप कहते हैं पुरानी की हम बातें मानते सही हैं है। सही है, हाँ, तो क्या हुआ? फिर आपने क्यों इसमें सालन की बात कहाँ है? नहीं, आपने क्यों कहा कि ये ज़ईफ़ है? मैंने कब कहा ज़ईफ़ है? बताया ना। मैंने कब कहा ज़ईफ़ है? नहीं कहा। मैंने कब कहा ज़ईफ़ है? जिस वक्त आपने बात की थी, आपने कहा है। मैंने नहीं कहा ज़ईफ़ है, मैंने नहीं कहा। ये बात सही है, ये बात सही है, इसमें मुश्किल क्या? आप मुझे ये बात बताएं। सही है, बिल्कुल सही। नहीं, ये बात सही है। कौन सी रिवायत? यही जिसमें कुत्ते का जिक्र है और चूहे का जिक्र है। इसमें कुत्ते खाने की कहाँ बात है? वो तेल आप कह रहे थे, तू कुत्ते का सालन है भाई, आपको रब लफ्ज़ समझ नहीं मालूम। और भाई चुप करो, लफ्ज़ समन कहते हैं चर्बी को। मुझे बोलने देना, आप मुझे बोलने दें ताकि बात खत्म हो जाए। बस आपने कहा मैं कहा बस बात खत्म है। इस तरह तकरार होती रही फिर तो बात नहीं खत्म होती ना। बात करें। बात ये है कि आपने रिवायत पढ़ दी और रिवायतें भी इसके साथ पढ़ दी इस हवाले से, और बातों के मतलब सवाल ही नहीं है मेरा। सवाल इसी के मतलब है और इसमें कुत्ते का लफ्ज़ है और आपने इसको सही भी बोल दिया। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि कुत्ते का इजाफा है, इसमें कल्ब का इजाफा है। बाज़ में है, बाज़ में नहीं है, बाज़ में है, बाज़ में नहीं है भाई। तो अभी तो आपने सही मान लिया। मुझे एक जुमला बोलने दे फिर आप करते रहे। मुझे एक जुमला बोलने दे फिर आप। बात यह है कि इसमें कुत्ते और चूहे के गिरने का जिक्र है। वो खाने की चीज है, वो खाना हम उसको कहते हैं, पाकिस्तान में उसको खाने कहते हैं, चाहे वो घी है। ठीक है, सुन ले मेरी बात सुन ले। जिनका गिरा है शिया से पूछे आप घी खाते हैं कि नहीं? देसी घी तो खाते ही होंगे, खाते हैं कि नहीं खाते? खाने की चीज है कि नहीं है? चलो दूसरा घी दिया तो वो खाने में इस्तेमाल करते हैं कि खाने की चीज है कि नहीं है? उसमें खाने का जिक्र है कि नहीं? खाने का जिक्र है कि नहीं? अगर चूहा, हदीस ये है, अगर चूहा घी में गिर जाए और घी से जिंदा निकल जाए, भाई खत्म हो कभी बोले ना, साथ कुत्ते कभी बोले। ओके फिर सुनो, खामोश रहो भाई। मतलब कुत्ते से आएगा, आप किसी तरह गधे और कभी से आया इस तरह कुत्ते का भी आना चाहिए ना चस्का थोड़ा सा। खामोश हो ताकि मैं बात करूं। जैसा जानवर मुझे बात कर लेने दे, आपने कर लिया ना, आपने हमारी बात बंद करके आपने कर लिया ना बात। ओके आपके पास टाइम है, 2 मिनट बात करें, फिर आपसे खुदाफिजी है, फिर मेरी बारी है। ठीक है, बात करो। ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ। उसके बाद जो है हम अपने सुनने वाले दूसरे मौजू पे नहीं करना, दूसरी मौजू नहीं चढ़ना, इसी मौजू पे, इसी पे करेंगे, इसी पे करेंगे। आप खामोश होंगे तो मैं करूंगा ना। आज ये है कि पहले तो इन्होंने कहा कि इसमें कुत्ते का जिक्र नहीं है और ये कहा कि ये बात सही नहीं है। बाद में इन्होंने कहा ये सही भी है, इसमें कुत्ते का लफ्ज़ भी है। सिर्फ चूहे की ये बात कर रहे हैं, चूहे के गिरने की बात नहीं है, कुत्ते के भी गिरने की बात है। और खाने की जो भी वो चीज है, चाहे घी है, चाहे सालन है, चाहे जो भी है खाने की चीज, उसको खाना ही बोलते हैं। उसके अंदर कुत्ता गिर रहा है, कहते हैं उसको जिंदा निकाल दे और वो खा लें, यानी कुत्ते से तो मस्त हो गया है, वो खा लें। अब ये तवीलें कर रहे हैं, उसको ऊपर से काट लें, उसको इधर से गिरा लें, ये सारी आपकी तवीलें। रिवायत में सिर्फ ये है, कुत्ते को चूहे को वहां से निकाल ले और वो खाने की चीज खा ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के सारा हजम कर लो। यानी गधा भी खाओ, कवा भी खाओ, और कुत्ते जैसा जानवर नहीं, कुत्ता आपको मुबारक हो, इसका सालन भी हो, चूहे का सालन उससे मसुदा सालन का है, उसका बना हुआ है। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हें शर्म नहीं है? आपने झूठ बोला है, उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने झूठ बोला है कि इसमें कल्ब नहीं है, इसमें गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है, मैंने जवाब दे दिया। वो सुनने वाले फैसला करेंगे कि इसमें खाने की बात है कि नहीं, खाने का लफ्ज है कि नहीं। आखिर में क्या लफ्ज है आप बताएं, इसमें आपने क्या इस्तेफादा कर सकते? इसमें लफ्ज पढ़ के आखिर में क्या है? इमाम ने जो आखिरी लफ्ज बोला है वो क्या है? आप हदीस पढ़ के तर्जुमा करो। मैं नहीं समझ, आपकी समझ क्या है इस हदीस से? पढ़ के तर्जुमा करो, तुम क्या समझते हो? मतलब आखिर में इमाम ने ये कहा है कि आप भाई तुम पढ़ के तर्जुमा करो, पूरा हदीस पढ़ के तर्जुमा करो, तुम पढ़ के तर्जुमा करो। पूरी हदीस आपने पढ़ दी, आपने भी पढ़ दी है, सबके सामने आ गई है। आप नहीं समझ रहे इस हदीस को, उसमें समझने वाले समझेंगे ना। है आप मेरी बात सुन ली, आपकी सुनी, वो फैसला कर लेंगे कि कुत्ता और चूहे की गिरने की बात है और कुत्ता और चूहे को निकाले और पीछे जो बच्चा खा ले। बात तो एक ही है ना। वो पका हुआ शोरबा था, ये थोड़ा कच्चा शोरबा है, ठीक है जी भैया। बस खत्म है। आप हदीस को नहीं समझे ना, आप समझ रहे हैं कि कुत्ता अगर तेल में गिर जाए। बस ठीक है, मैंने बात कर ली है। आप इसके बाद करना चाहते हैं? चले अल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू खुदा हाफिज़। देखिए ये इनकी या तो ये समझते हैं, इनको पढ़ना भी नहीं आ रहा रवायत, आपको पता था अल्फाज कैसे पढ़ रहे थे। ये हदीस को इन्होंने नहीं समझा। हदीस ये है कि चूहा गिरता है तेल में या चूहा गिरता है घी में, फिर वो जिंदा ही निकल जाता है, या कुत्ता गिर जाता है। दूसरे बाद नुस्खों में कुत्ते का भी जिक्र है कि कुत्ता भी गिर जाता है, वो फिर जिंदा निकल जाता है, जिंदा निकल जाता। तो ये उसका तर्जुमा ये कर, ये शायद इनके ज़हन में ये है कि अगर वो गिर जाता है तो फिर उसी कुत्ते को हम खा सकते हैं। उसकी बात नहीं हो रही, तेल की बात हो रही है, घी की बात हो रही है कि वो तेल या घी उसको क्या कर सकते हैं। और वो भी एक शाज़ रिवायत है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर मुझे पता होता कि आप इस मौजू पे सवाल करेंगे तो मैं तो बहुत सारी रिवायत आपके खिदमत में निकाल देता। तो जहां तक कुत्ते का ताल्लुक है वो बाज रिवायात में है। और अगर कुत्ता अगर शायद मंजूरी है, अगर वो लफ्ज़ खल्ब साबित है, अगर तेल का बहुत बड़ा बर्तन है या समन या चर्बी का बहुत बड़ा बर्तन है, कुत्ता उसमें हाथ रख के निकल जाता है। तो दूसरी रिवायत के साथ जमा करेंगे तो यही होगा कि उसमें से जहां पे उसने पैर रखा है तो उसको फेंक दें, बाकी का इस्तेमाल करें। लेकिन जो माया होता है तो फिर उसमें इश्काल आ जाता है। तो वो इसका यही है कि वो बाज़ नुस्खों में खल्ब का जिक्र नहीं है, सिर्फ चूहे का जिक्र है कि चूहा अगर तेल के बर्तन में गिर गया और निकल आया, उसकी बात हो रही। जहां तक चूहे का जिक्र है आपकी मजहब में तो उसकी तरफ आ जाता है ना। आपने तो मुझे रिवायत पढ़ने नहीं दी आपकी मजहब में। ये मौलवी साहब ने बहुत टाइम ले लिया। असल मौजू पे जो इख्तिलाफी मसाइल पे उन पे बात नहीं करते। अमीर अब्बास साहब अबू बकर की खिलाफत है, उमर की खिलाफत है, वो एक हदीस लेकर आता है ना, मसलन ये वाली हदीस उस डक्कू ने फिलान किताब में लिखी है, वो हदीस उसके साथ साबित कर दो। आपको हमने बहुत टाइम दिया, अब आप अगली दफा आएंगे तो असली मसाइल पे बात होगी आपसे, ठीक है ना। इस तरह नहीं होगी कि आप जो है जो आपकी मर्जी होगी जिस रिवायत पे उसी पे बात होगी, नहीं। आप आएंगे इधर तो सही